Good morning, children. Welcome back to our class. Today we are going to start a new chapter, lesson number 7, saying without speaking. Can you imagine anyone says anything without speaking, or they convey their feelings without speaking? Yes, they can. And how they can? Let's see it. Dumb charades. Let's play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. Here you have to make a group of 7 and you have to let others know what they want to tell without speaking. You have to tell others without speaking. Okay. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it, or your teacher will give a piece of paper and in this paper there is a situation which you have to convey to other students. Okay, without speaking. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. Now each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. सभी क्या करेंगे कि जो भी पेपर में लिखा हुआ है, जो भी सिचुएशन लिखी है उसी की तरह उसकी एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करेंगे. और आपको क्या करना है, कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बोलना नहीं है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. यू कैन एक्सप्रेस, आपको क्या करना है कि बॉडी मूवमेंट और फेस से आपको वो जो भी सिचुएशन है वो एक्सप्रेस करनी है. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. अब क्या करना है कि जब भी आपका एक्ट रेडी हो जाए तो जो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप के सामने वो एक्ट प्रेजेंट करेगा, वो भी ओनली एक्सप्रेशन से, बोलना नहीं है. दे कैन नॉट स्पीक. ओके, और दूसरे ग्रुप को क्या करना है कि जो एक्शन हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो आपको बताना है कि वो कौन सी सिचुएशन है. How did you like this game? How did you like this game? I liked this game because it is very interesting. Did you find it difficult to act without speaking? क्या आपको लगता है कि बोले बिना कुछ भी एक्ट करना, कुछ भी एक्सप्रेस करना वो डिफिकल्ट है? यस, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. बोले बिना कुछ भी एक्सप्रेस करना वो डिफिकल्ट ही होता है. मानो कि हमने एक्सप्रेस भी कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाले को वो समझ में आए. ओके, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. ओके, नाउ have you ever seen anyone talking through actions? Yes, dumb people talk through actions. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने कभी भी किसी को एक्शन से बोलते हुए, अपनी बात को रखते हुए देखा है? Yes, dumb people. Yes, dumb people talk through actions. जो बोल नहीं सकते ऐसे people जो होते हैं वो एक्शन से ही बात करते हैं. When do people need to talk like this? पीपल को ऐसे बात करना क्यों जरूरी होता है, कब वो ऐसे बात करते? पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस. जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग एक्शन से बात करते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट यू कैन सी दीज चिल्ड्रंस आर टॉकिंग विथ द एक्शंस और फेस एक्सप्रेशंस. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. अब क्या होता है कि जैसे कि मोस्टली तो ऐसा होता है कि सभी लोग बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनको जो भी कहना होता है, उनको जो भी बात रखनी होती है वो एक्सप्रेशन के थ्रू या तो फिर एक्शंस के थ्रू वो बात करते हैं. और दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट. और वो क्या करते हैं कि वो सुन भी नहीं सकते, तो वो लिप मूवमेंट, सामने वाला जो बोलता है उसकी लिप मूवमेंट देख के वो उनको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb trees quickly,
while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. अब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोग होते वो सभी काम कर सकते। कुछ अच्छा गाते हैं तो कुछ अच्छी पोएट्री लिखते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ होते जो फटाफट से वो लंबे लंबे जो टॉल ट्रीज होते हैं उसके ऊपर भी वो चढ़ जाते हैं। सभी की अलग अलग एबिलिटीज होती है। वी आर ऑल स्पेशल इन ऑन आर ऑन वेज। हम सभी अपने अपने तरीके से स्पेशल हैं। Hence, in schools, we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. अब क्या होता है कि जैसे कि हम स्कूल जाते हैं कुछ सीखने के लिए, वैसे जो लोग ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते वो भी स्कूल जाते हैं और वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखते भी है। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। और उनको क्या सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज। जो लोग बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशल एक लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, और उनको वो सिखाई जाती है। लेट्स रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। चलो अभी कुछ देखते हैं कि जो सुन नहीं सकता है लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। दिस इज द पोएम। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डीफ, सी इज स्पेशल। मेरी बहन है और वो सुन नहीं सकती लेकिन वो स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें नहीं है किसी की। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग। मेरी बहन को पियानो बजाना बहुत ही पसंद है लेकिन वो गा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो डम्ब है। ओके। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. Now my sisters have started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. अब क्या है कि मेरी बहन ने मेरे साथ स्कूल जाना भी स्टार्ट किया है और मेरी मदर जो है उसको लिप रीडिंग में घर पे हेल्प करती है। The teacher and children do not understand every word that she says. लाइक सिस्टर और वाटर और थम। अब क्या है कि जैसे हम लोग तो समझ जाते हैं कि मेरी सिस्टर क्या कह रही है, लेकिन स्कूल में कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हैं और कुछ टीचर्स भी ऐसे जो मेरी बहन जो भी कहती है वो समझ नहीं पाते। आई वॉर माई सनग्लासेस यस्टरडे। मैंने कल अपने सनग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। अब क्या हुआ कि मैंने कल सनग्लासेस पहने थे तो उसके जो लेंसेज थे वो बड़े भी थे और डार्क भी थे। तो मेरी सिस्टर ने क्या बोला, जब भी मैं बोल रहा था तो उसने मेरे सनग्लासेस रिमूव करवा दिए। व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज। क्यों? क्योंकि उसको उनकी आंखों से जो उसका जो ब्रदर था उसकी आंखों से उसको देखना था कि वो क्या बोल रहा है। ओके। नाउ दिस इज द पोएम एंड रिटन बाय जेनी व्हाइटहाउस पैटरसन। ओके। Next, through this story, it can be discussed that we have different abilities by incorporating the children's own experience. Sensitivity towards this issue can be enhanced. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. अब क्या होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं अप टू 2 ईयर्स, वो ना तो बोल सकते, वो बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो भी उनकी जो मूवमेंट होती है, उनको जो भी कहना होता है वो या तो फेस से या तो हैंड मूवमेंट से, वो एक्शन से वो बताते हैं और वो हमें वो समझते भी है। द फेस इज अ मिरर। द फेस इज अ मिरर। जो हमारा फेस है वो हमारा मिरर भी है। कैसे? लेट्स रीड। Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आपको क्या करना है कि जो 6 to 8 मंथ्स के जो बेबीज है उनको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो उनकी जो बात कैसे रखते हैं, उनको अगर कुछ चाहिए होता है तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस these are. They have no eyes, no nose, no mouth.
you have to make this but only after reading what is written alongside. अब यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए और उसकी ना तो आईज है, ना उनका नोज है और ना तो उनकी माउथ है, तो वो आपको ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिए गए है वो आपको रीड करना है और उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉयज हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही सेड, हाउ विल हिज फेस लुक। हियर यू हैव टू ड्रॉ अ फेस विच इज एक्सप्रेस दैट दिस बॉय इज सैड। ओके, तो यहाँ पे आपको वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, this is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? Julie and her little sister was born just yesterday. उसकी जो छोटी बहन थी उसका जन्म कल ही हुआ है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है और हैप्पी है, तो वो फेस आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है विच लुक्स लाइक हैप्पी और एक्साइटेड। ओके, दिस इज यामिनी's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अब यहाँ पे क्या है कि यामिनी की जो मदर है उन्होंने कल ही पिकल बॉटल ली थी और वो क्या हुआ कि यामिनी के हाथ से वो छूट गई और वो गिर गई। तो अभी यामिनी की मदर बहुत ही एंग्री है, गुस्सा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे फेस ड्रॉ करना है जो आपको दिख सकता है कि वो यामिनी की मदर वो एंग्री है। This is Rihanna. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? अब क्या है कि रिहाना जो है वो खेल रही थी और रिहाना को डॉग से बहुत ही डर लग रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खेल रही थी तो उसके सामने अचानक से डॉग आ जाता है। तो यहाँ पे आपको फेस ड्रॉ करना है विच लुक्स लाइक रिहाना इज स्कैर्ड। डॉग को देख के वो क्या हो गई थी, स्कैर हो गई थी, तो आपको वैसा फेस यहाँ पे ड्रॉ करना है। Now, by looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. अब क्या है यहाँ पे कि हम किसी के फेस को देख के भी ये जान सकते हैं कि जो सामने वाला जो इंसान है वो हैप्पी है या सैड है या एंग्री है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? अब क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई भी मिस्टेक मतलब कि कोई भी भूल की हो, कोई गलती की हो और आपकी मदर को ओनली आपका फेस देख के ही पता चल जाता है कि आपने कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है। कैसे? आप बहुत ही डरे हुए होते हो या तो फिर बहुत ही स्कैर्ड होते हो। ओके, वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, these are called mudras and भाव्स। अब क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि हम फेस से भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेस दिखा सकते हैं, वैसे ही हम डांस से भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। वो भी कैसे? हैंड्स और फेस की मूवमेंट से, और उसे बोलते हैं मुद्राज और भाव्स। ओके, लुक एट एंड डू दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए, हैंड्स मूवमेंट है वो। ओके, तो आपको वो लिख रहा है कि वो कौन सी मुद्रा है। इन दिस फर्स्ट पिक्चर दिस इज द हैंड मूवमेंट एंड इट लुक लाइक अ बर्ड। ओके, मतलब कि कली की तरह वो है। इन द सेकेंड पिक्चर इट्स लुक लाइक फ्लावर। बर्ड होता है वो ऐसा होता है तो ग्रो करता है तो वो फ्लावर बनता है। यू कैन सी हियर। देन थर्ड इमेज इज लाइक अ स्नैक। ओके, this movement is look like a snake and last it's look like fish. Okay, now look at these pictures and guess, make your own story, tell this story to your friends and discuss. Here you can see some images of squirrels, and squirrels make some snakes for their friends. Okay, this was a squirrel and it lived on a tree. One day she collect rice and moong dal and make a khichdi for its friends, and she invited so many friends like butterflies, mosquitoes, cuckoo, rat and crow, and they came to her house and they enjoyed this lunch. Okay, now this is the lesson for you. I hope you understand this lesson. Thank you children. Bye bye.